मैं डॉक्टर सुरेंद्र सोनी आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अनुगूंज के इस 11th एडिशन में श्री प्रशांत सरकार सर एंड कीर्ति सरकार में मैम जो हैं पिछले 11 वर्षों से इसको निरंतर आयोजित कर रहे हैं और आप सब सहभागी हैं इस कार्यक्रम के पिछले कई सालों से। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्वागत करते हैं फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन पर टॉक शो के लिए मशहूर फोटो जर्नलिस्ट एवं लेखक श्री प्रदीप चंद्रा जी को एवं आपसे वार्ता के लिए हमारे मध्य विराजमान श्रीमती कीर्ति भी सरकार को आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। प्लीज कम फॉरवर्ड। हमारे मध्य है श्रीमती कीर्ति भी सरकार। आपका जन्म दिल्ली में हुआ। प्रारंभिक एवं कॉलेज शिक्षा BFA पेंटिंग से आपने कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली से किया तथा इसके पश्चात फाइन आर्ट्स में MA एवं आर्ट एप्रिसिएशन राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में हुआ आपका। वर्तमान में आप भारतीय विद्या भवन दिल्ली में विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट की HOD हैं तथा आपने कई एकल प्रदर्शनी एवं ग्रुप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। आप कलाकृति फाउंडेशन की कोषाध्यक्षा भी हैं तथा आप एवं श्री प्रशांत के सरकार एंड टीम ने विगत 11 वर्षों से जयपुर में लगातार अनुगूंज वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कला एवं कल्चरल शो को आयोजित कर रहे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और अब टॉक शो के लिए आप सभी सहभागी बने और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर एंड मैम को। प्लीज बी कंटिन्यू। I take this opportunity to welcome Pradeep ji once again and thank you so much for coming all the way from Mumbai to give us this insight into Amitabh Bachchan ji's life. And I'll start the talk show and I'm quite intrigued by Pradeep ji that you have already written 2 books on Amitabh ji and the third one is just about to be published. So is there some common thread that binds you to Amitabh Bachchan ji and you are still writing on him? And he of course had 2 exhibitions on Amitabh Bachchan ji on his 61st birthday and the 75th birthday. Thank you so much, Kirti. Before I answer your question, I would like to say about Mr. Bachchan why I did all these things. In the last so many years of the film industry, ever since Dada Saheb Phalke started this, there had been many great actors and very well known too, like Prithviraj Kapoor ji, then there was Dilip Kumar, Devanand, Raj Kapoor. Ashok Kumar ji had a very long innings. He not only did lead roles as an actor in film, but he was one of the few people right in the beginning who tried his hand at television also. Then there was Dilip Kumar, Devanand, Raj Kapoor, followed by Shami Kapoor. Then there was Rajesh Khanna, the first superstar, and then there was Manoj Kumar, Dharmendra, and so many. And then Mr. Amitabh Bachchan. But if you look back or look today and think about these stars, you realize that like Mr. Amitabh continues to be today for so many years, for 5 decades. That was the one reason. Now coming back to the question that what is common is this, that we both come from Ganga Kinare. While I was born in Banaras, he was born in Allahabad. And my father was also a film journalist. My father was a film journalist, his father was a poet and writer. And then apart from that, one of his, Mr. Khanna told me the other day that Mr. Bachchan had a schoolmate whose name was also Pradeep Chandra. So that's one thing. That was the thing, and I have huge admiration for Bachchan ji, and I have followed him. I have been photographing him since last 40 years. Since 80 I would say on a regular basis. And I have done 2 exhibitions on him. And that is one of the reasons that I wrote these books
I greatly admire him, and the other person I admire in film industry is Mr. Dev Anand, who also had a very long inning, who worked till he lived. But his film did not do well at the heart. I would say that in the last 30 years that he lived, nobody was interested in seeing Mr. Dev Anand's film. But they all were very much interested in Dev Anand the person. They liked him, he was a very loved man by everybody. But as far as Mr. Bachchan is concerned, nobody liked him. Definitely. He's unstoppable, I suppose. I request the please shift this umbrella. Is not able to see. Yeah, this one, yeah. Thanks. Yeah, coming back, somehow I feel recommendations work a lot to make people where they are. And was there a strong recommendation of G as well to come into the movies and get the roles that he got? Recommendation work or it doesn't work is another question. But I think you are mentioning, you want to say Mrs. Indira Gandhi. They were great family friends. But I don't think Mrs. Indira Gandhi recommended him. If she would have, I'm sure at least, if nothing else, they would have won the film for it, Madhuri contest, which he didn't win. Instead, Samir Khan, the brother of Feroz, and Sanjay Khan had won that. So I don't think Mrs. Gandhi was very instrumental in helping Amitabh Bachchan. But his mother, I would say, Mrs. Teji ji, was of great help, and she had recommended him to Nargis ji. And Nargis Dutt spoke to her husband, Mr. Sunil Dutt, and then once when Mr. Sunil Dutt was going to Calcutta, he stayed there, and that is where Teji ji came to meet him and spoke to him about the Amitabh Bachchan. And then he had a man Friday who went to meet Bachchan ji in his office, and they had a meeting and all, and Nargis recommended him also to B.R. Chopra. B.R. Chopra was, Sunil Dutt was working in all the films that B.R. Chopra was making, and Nargis of course was a huge star by then. But it really didn't work because B.R. Chopra did not take him in his film. He asked one of his friends, Mohan Saigal, who was making a film in that year, I think, maybe 67, 68, Sajal, starring Manoj Kumar and Asha Parekh. Yeah. So Bachchan ji went there for, and he did the screen test, etc. And I would say the first person, that's what I've heard, that when Manoj Kumar met him at Ruktara studio, he came to the makeup room and Bachchan ji was there. Manoj Kumar instantly had a liking for the man, and he said कि इनमें बात है, मतलब इनको कुछ बनना चाहिए. In fact, Manoj Kumar even offered him a role. Just after few days he left back for Calcutta. He was making a film for Yadgar, and he had a small role. But for some reason, I think he did not accept that role. So that role, I don't know who did it. So, as far as recommendation is concerned, I told you that wherever even Nargis recommended, she also spoke to Tarachand Bhattacharya. He went to meet Tarachand Bhattacharya, and Tarachand Bhattacharya was a big producer at that time. He was producing all sorts of films, and they were very hit. Small films, but they were hit. And Bhattacharya saw him and he said कि अरे आप तो बहुत लंबे हो और आपके साथ हीरोइन कहाँ से मिलाएंगे हम, और why don't you become a poet like your father? You have great personality of a poet, etc., etc. But you didn't help him. But Dutt Saab kept his promise and gave him a role in Reshma Oshera. अब उसमें भी उन्होंने जो रोल दिया वो क्या दिया गूंगे का, जिस आदमी की आवाज़ इतनी अच्छी कि आज उस आदमी के हर गाने हिट, कोई भी नेशनल हो, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता हो, किसी का हो, जितना भी हो, आज लोग उनकी आवाज़ सुनने के लिए इतने तत्पर रहते हैं, सुनते हैं, और उनकी कविताएं इतनी सुनते हैं. अपने फादर हरिवंश बच्चन की कितनी कविता वो पढ़ते रहते हैं, जिनका रिकॉर्ड भी बना है.
HMV ने बहुत शुरुआत दौर में उनके मधुशाला का रिकॉर्ड बनाया था, मगर 10 साल में उनको गूंगा बना दिया फिल्म। But at that time, his baritone was not accepted, and No, that's unfortunate. That's very unfortunate. Actually, and I think the proverb in Hindi goes that "फूट के पाँव पालने में ही दिखते हैं." So I think that is true for Amitabh ji, and I wonder if the act was an inborn one, or was it the influence of being in Calcutta and working in theatres and stuff like that? Calcutta came much later, but when he was studying in St. Mary's in Allahabad, वहाँ भी उन्होंने थिएटर किया था। आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही जिसमें उनको अवार्ड मिला था। उसके बाद जब शेरवुड गए तब तो ऑफकोर्स उन्होंने 2 प्ले किए, जिसमें 2 तो मुझे मालूम है, सब और भी किए हों, तो दोनों में ही उनको अवार्ड मिला। और जो उनको सेकंड अवार्ड मिला था वो जेफरी कैंडल ने दिया था, इनका थिएटर में इतना बड़ा नाम था, और शशि कपूर के वो फादर इन लॉ थे और जेनिफर के फादर थे। तो थिएटर का तो उनको बहुत शौक था ही। जब वो शेरवुड से दिल्ली आए तो उस समय मिरांडा कॉलेज में एक प्ले हुआ करता था, और हालांकि तो करोड़ीमल कॉलेज में पढ़ते थे, मगर और मैंने सुना है कि जो ज़्यादा करके शेरवुड कॉलेज के ये सेंट स्टीवेंस के लोग जो होते थे उसमें भाग लेते थे। इन दिस पर्टिकुलर केस Amitabh Bachchan had done a role, and the other lady who was there was Dolly Thakur, who is a huge name in theatres today and in Bombay. तो प्ले का तो उनका था ही, और देखिए उन्होंने कोई एक्टिंग की कोर्स तो किया नहीं है। जैसे दिलीप कुमार साहब ने भी कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं किया, देवानंद ने भी नहीं किया था, मगर उनको थिएटर का एक तो था। बस बच्चन जी की एक बात रही है जो अब तक है, he is very 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 passionate about whatever he does. Definitely. और यही एक कारण है जिसको मेरा ख्याल है उनकी जो स्टेबिलिटी है, जो पॉपुलैरिटी है, जो उनको लोग इतना लाइक करते हैं। अभी भी उनका है कि जब सुबह शूटिंग के लिए अगर 6 बजे होगा तो वो प्रोड्यूसर मुझे बताते हैं, मनमोहन देसाई का बेटा केतन देसाई बता रहा था कि जो मैं प्रोडक्शन में काम करता था, और पापा बोले 7 बजे का शूट है, तो हम लोग जाते थे 7:30 बजे के भी 9 बजे हो शुरू के पहले कोई आएगा नहीं, तो जाते थे। तो बच्चन जी अपनी कार में बैठे हुए हैं, बोले मैं तो 6:30 बजे आ गया था। ये सब बातें ऐसी बातें हैं जिसने उनको बहुत हेल्प किया। Yeah, I've heard about so much that he reaches the sets even before the newcomers, the new actors are there. He's always there to welcome everybody, I would say. And I really wonder, like Jaya Bachchan was already in films and she was acting. So was it in some way that Jaya herself recommended Amitabh to? I don't think so. I don't think Jaya recommended him anywhere, because see, he was to act in one film with Jaya Bachchan in Goody. He had a small role, but that was the lead role. पूरी फिल्म तो जया जी पे और धर्मेंद्र पे थी वो, तो उसके लिए साइन किया था बच्चन जी को, और 4-5 दिन की शूटिंग भी हुई। बट फॉर सम रीज़न ऋषिकेश मुखर्जी को बाद में लगा कि ये बिकम वेल नोन बाय देन, आनंद फिल्म शायद आ गई थी, तो इसे कि नहीं उनको हटा दिया। तो अगर जया का कुछ इन्फ्लुएंस होता तो जरूर वो वहाँ पे काम करता, विच डिड हुआ। एंड ऑल्सो ऑल द अर्लियर फिल्म दैट ही डिड, इफ यू सी लाइक रेशमा शेरा को छोड़ लीजिए, बट समझ लीजिए आनंद या रास्ते का पत्थर, सब फिल्मों में जया जी का कुछ लेना देना नहीं था, उनको अपने से ही मिली थी। और फिल्म चली या नहीं चली अलग बात है, मगर आई डोंट थिंक जया जी रिकमेंडेड हिम मेनी फिल्म्स। शी एक्टेड विथ हिम इन मेनी फिल्म, दैट आई वुड एग्री। शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्में 4-5 फिल्में की, और वो फिल्में चली भी नहीं। एक फिल्म थी डॉक्टर धर्मवीर भारती के ने लिखी थी, उसका नाम था गुनाहों का देवता, और उसकी जो शूटिंग हो रही थी उस फिल्म का नाम था एक सी सुधा, एक था समथिंग लाइक दैट। और उस फिल्म की शूटिंग भी हुई इलाहाबाद में। बच्चन जी स्कूल इलाहाबाद छोड़ने के बाद पहली बार गए थे इलाहाबाद, और फिल्म बनी नहीं पूरी। जंजीर जो है पहली फिल्म थी,
जिसमें जया जी ने काम किया और बच्चन जी ने काम किया और which made him a star and also Jaya was a great help in that. Zanjeer, I think, launched him as a star. Yes, जंजीर जो थी इसके पहले फिल्में जो भी उन्होंने की वो चली नहीं, मगर एज एन एक्टर उनकी सबने तारीफ की। और मुझे याद है कि एक बार जावेद अख्तर से बात हो रही थी, जावेद साहब ने कहा कि जब मैंने फिल्म बनाई थी सोची, उन लोगों ने कहानी लिखी थी जंजीर की और वो प्रकाश मेहरा ने खरीदी थी वो कहानी। मगर वो लोग जितने एक्टर के पास गए, जिसमें देव आनंद थे, दिलीप कुमार, राजकुमार और धर्मेंद्र ने वो सबसे पहले कहानी खरीदी थी, पर किसी ने उस पर काम कर, सब ने काम करने से इनकार कर दिया। देवानंद ने कहा इसमें हीरोइन कहाँ है, इसमें मेरे गाने कहाँ हैं। तो He was a romantic person. तो इन लोगों को, सलीम जावेद को ये बड़ा प्रॉब्लम था, डर था कि अगर इनको हीरो नहीं मिला तो मेरी फिल्म का क्या होगा, कहीं मेरा स्क्रिप्ट वापस न कर दे। तो जावेद साहब से मुलाकात हुई बच्चन जी की आनंद के ही सेट पे शूटिंग हो रही थी, दूर कहीं जब दिन ढल जाए, ये मुझे उन्होंने खुद बताया था जावेद साहब ने, उनका इंटरव्यू किया था मैंने। उन्होंने कहा वहाँ पे मैं मिला उनको और उनसे बात हुई, और क्योंकि वो खुद पोएट थे तो डॉक्टर हरिवंश शाह बच्चन से काफ़ी प्रभावित थे। तो जब बच्चन जी से मिले तो उन्होंने सोचा इनकी मैं फिल्में देखूँ। फिर उन्होंने इनकी फिल्में कई कई बार देखी, जैसे रास्ते का पत्थर और 2-4 फिल्मों का और नाम, परवाना उनको बहुत पसंद आई। ये फिल्म देखी, बॉम्बे टू गोवा देखा। बॉम्बे टू गोवा में जो ये आदमी को घूसा मारता है शत्रुघ्न सिन्हा, और ये उठता है जब खड़ा होता है तो फिर भी चुंगम खा रहा है, तो वो उनको बहुत पसंद आया। तो गए सलीम खान से कहा उन्होंने कि अरे हीरो मिल गया। तो उन्होंने बच्चन जी का नंबर कहीं से लिया, वो मंगल में रहते थे, जुहू में, उनको फ़ोन किया और कहा कि मैं आपको स्टेज सुनाना चाहता हूँ। तो बच्चन जी कहा आज ही आ जाएगी। तो मैं टैक्सी पकड़ी, गए, जाकर अमिताभ बच्चन को मिले और मिल के कहा देखिए ये कहानी, ये फिल्म आप ज़रूर कर लीजिए, कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊँगा। मुझे भी अच्छा पूरी कहानी सुनाई, कहानी बहुत अच्छी थी। बच्चन जी ने कहा डू यू थिंक आई विल एबल टू डू दिस रोल। क्योंकि उसके पहले जो उन्होंने फिल्में की थी वो बहुत सॉफ्ट और अलग ढंग की फिल्में थी। जावेद साहब ने कहा ओनली यू कैन डू दिस फिल्म, ओनली यू कैन डू द जस्टिस। बच्चन जी एग्री कर गए। तो उन्होंने जाकर प्रकाश मेहरा से कहा, तो वो लोग शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म का नाम तो मत पूछिएगा मुझसे। उसमें हेमा मालिनी और जितेंद्र थे। तो नेक्स्ट डे वो उनको लेकर गए, शायद संजोग नाम था, नहीं संजोग को नाम भूल गया मैं। लेके गए, रूप तारा ने स्टूडियो में मिलवाया और दैट इज हाउ साइंड दैट फिल्म, दैट इज हाउ जंजीर वाज मेड एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। Yeah, and history, and it still is like Yes. going strong. As a lover boy, he was always accepted by people. But then later on, he took up the Angry Young Man. And I think the Angry Young Man was something that launched him rather than the lover boys that he had been doing. लवर बॉय का एक ऐसा है कि लवर बॉय विल ऑलवेज बी देयर एंड पीपल विल लव लवर बॉय बिकॉज एवरी मैन इज अ लवर, एवरी वुमन इज अ लवर। इट हैज एग्जिस्टेड सिंस आई मीन एजेस। तो लवर बॉय की फिल्में तो चलती ही थी और राजेश खन्ना ऑफकोर्स लवर बॉय थे, ऋषिकेश मुखर्जी, ऋषि कपूर थे, बहुत सुपरस्टार उस समय। बच्चन जी ने भी काम, बच्चन जी ने एक ही फिल्म इस तरह की मेरे ख्याल है, फर्स्ट कमर्शियल फिल्म जो थी उनकी बॉम्बे टू गोवा। और ये जब जंजीर की बात है तो जंजीर के बाद इत्तेफाक से जितनी कहानियाँ लिखी गई, चाहे आप देखिए त्रिशूल देखिए या दीवार देखिए, तो एक लाइन से उनकी इतनी फिल्में आई जिसमें सब इस तरह का इमेज था। और उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, लोगों को बात करना मुश्किल था, अखबारों में उतना ब्लैक कर देते थे।
उतना पेपर जब आप फ्रंट पेज पे देखेंगे तो हेडिंग ब्लैक में है, तो लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। तो ही वाज लाइक अ रिप्लाई टू नो दिस, आई एम देयर फॉर यू। Yeah. आई थिंक दैट इज टच गॉट पीपल। बट एंग्री यंग मैन के साथ मैं एक बात ये और भी कहूँगा कि बच्चन जी ने हमेशा ये कहा है कि ये इमेज तो आप लोगों का दिया हुआ है एंग्री यंग मैन का, और मैंने हमेशा हर एंग्री यंग मैन के रोल के साथ एक चुपके चुपके किया है। Definitely. या ऋषिकेश मुखर्जी की जितनी फिल्में आप देखिए, मनमोहन देसाई की देखिए आप, हमारे पर एंथोनी सच ए ह्यूज हिट, Huge. और उसमें उनका बिल्कुल भी रोल एंग्री यंग मैन जितनी भी फिल्में और डायरेक्टरों के साथ कर रहे थे ऑफ कोर्स में थी, जो रोमांस भी था और वो भी था, एंड वंस यू आर सक्सेसफुल देन एवरीथिंग वर्क्स। Yeah, I think that is what the key word is. But that was the time when he was like on the top of his career. Yep. And then he decided to go into the politics. And that was the time which really saw the downfall. So was the decision of going into politics a bad one? देखिए पॉलिटिक्स में जो उनका जाना था वो he was so close to that family. Mrs. Gandhi was killed at that time, and Rajiv Gandhi had become the prime minister, and they were really close friends. Rajiv Gandhi and बच्चन जी, उन्होंने एक टेलीग्राफ में आर्टिकल भी लिखा था, कवर स्टोरी, माय फ्रेंड राजीव, जिसमें उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था कि पहली बार कैसे मिले थे, क्या था। तो he really cared for him, and they were great buddies. तो जब उन्होंने कहा राजीव गांधी ने कि भाई राजीव गांधी है डिफरेंट थॉट, वो सब नए लोगों को लाना चाहते थे, अरुण सिंह को देख लीजिए, अरुण नेहरू को देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को ले आए वो, तो बच्चे ने एक्सेप्टेड, और एक्सेप्ट करना भी चाहिए। आपकी दोस्ती किस काम की अगर आप ज़रूरत के साथ ना करें। और जिस मार्जिन से वो जीते अब इलेक्शन, उस मार्जिन से वहाँ से मेरा ख्याल है कुछ सालों पहले तक कोई भी नहीं जीता था, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी थे या बहुगुणा जी थे या लाल बहादुर शास्त्री थे। बहुत ज़बरदस्त जीत थी उनकी, और मैं नहीं कहूँगा कि उनकी गलती थी कि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। बट द जीत जो उनकी थी, आई थिंक वो जीत एक्टर की थी, या आई मीन ही वाज न्यू टू द पॉलिटिक्स, बट आई थिंक पीपल केम आउट एंड वोटेड जस्ट बिकॉज ही वाज अमिताभ बच्चन. See, that is always there. I mean, Rajiv Gandhi will win because he's Rajiv Gandhi. Amitabh Bachchan will win because he's Amitabh Bachchan. But that was an actor which was, you know, attractive. Of course, popularity तो एक्टर की कोई थोड़ी इससे इनकार किया जा सकता है। उनको ही क्या, they have become so popular because of their acting. Nobody knows that धर्मेंद्र कैन बी पॉलिटिशियन ऑल्सो, बट वो जब गए लड़ने तो भाई अरे भाई धर्मेंद्र आ रहा तो हो जाता, कोई आया बुरा आया ही नहीं। मगर ज्वाइन किया, मुझे याद है कि उन्हीं दोनों प्रीतिश नंदी ने एक पीस लिखा था, इलस्ट्रेट वीकली में था कि फिल्म फेयर में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, एंड ही सेड दैट हिज ओन पीपल विल नॉट अलाउ हिम टू बी सक्सेस, दैट इज वन. Secondly, why Gandhi said why he will not become success in politics, because अभी तक फिल्मों में करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ लड़ते थे, और लोगों को वो पसंद आता था कि एक आदमी अगर हमारे लिए लड़ रहा है और पॉलिटिशियन को छोड़ दो क्या है, अगर एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी ऑन द अदर साइड विद द सेम गवर्नमेंट against whom he opposed in all the films, etc., etc. So that is one reason why people will not support him. And then of course Bofors happened, and there were people like VP Singh and others who were not, who never wanted him to be success because he was close to Rajiv Gandhi. So तो ये सब एक पॉलिटिक्स था जिसकी वजह से उनको पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ा, ये भी आप कह सकते हैं। हालांकि उनका कहना है, अमिताभ बच्चन ने खुद एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं इलेक्शन में था और मैं कॉन्टेस्ट कर रहा था रैलीज वगैरह, तो एक 15-20 दिन
रैली अटेंड करने के बाद एक दिन मैं घर गया और मुझे लगा कि आई एम नॉट कट आउट टू बी अ पॉलिटिशियन. सो आई टोल्ड माय फादर दैट आई वुड लाइक टू क्विट, आई डोंट वांट टू कॉन्टेस्ट. तो बाबूजी ने कहा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है करो. तो माँ से कहा, तो तेजी जी ने कहा नहीं, तुम लड़ो, वी आर गोइंग टू विन, एंड वंस यू विन देन इफ यू वांट टू लीव यू लीव. So that's it. जिंदगी में होता है, somewhere you succeed, somewhere you fail. Yeah. Unfortunately, he failed in that, but he succeeded again in films. And succeeded in a Again, big. films, and I think KBCL worked well for him when he Yes. came back after the book wars and all the stuff in the politics. I mean, KBCL was a support. See what happened that after he left politics, he had taken a 5-year break. He went to states, he traveled other countries. बहुत लोगों ने कहा ये इतना सक्सेसफुल हो, इतनी फिल्में चल रही, छोड़ के जा रहे हो. He said yes, I want time for myself. And then he said कि उनका खुद का कहा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि wherever I went, I wanted to go, I went wherever I wanted to travel, whatever I wanted to do. All that I could not do in the last 30 years because I was so busy with films. Now let me enjoy that. And that is where he learned that he should start his own, ABCL, Amitabh Bachchan Corporation Limited. And he came back and he started that and started with a big bang in fact. But then Miss World happened, which didn't work for him. All the money that he had earned, he lost it in Miss World. And that is where the downfall came. It didn't come, the downfall not because of politics, the downfall is because of the money he lost in ABCL. And when in ABCL, they started making film. पहली फिल्म वो बना रहे थे माधुरी दीक्षित और आमिर खान को लेके. मैं उसके मुहूर्त पे गया था, मुझे याद है. और ऐसा पढ़ा था मैंने, पता नहीं बच्चन से बात की थी कि मुझे माधुरी ने साड़ी पहनी थी मुहूर्त पे, बच्चन जी की पसंद की खरीदी हुई साड़ी थी. बट दैट फिल्म फॉर सम रीजन कुडंट बी मेड. सो मेहुल कुमार हैड अ स्क्रिप्ट एंड somebody told him, "Are if you have a ready script, speak to Mr. Bachchan, you're looking for a director." तो मेहुल कुमार गए मिलने, और मेहुल कुमार को मनमोहन देसाई ने ही मिलवाया था बच्चन जी से. और मनमोहन देसाई जी ने कहा था कि ये मेहुल कुमार हैं, ये गुजरात के मनमोहन देसाई हैं. तो मेहुल कुमार ने कहानी सुनाई और बच्चन जी ने कहा ठीक, आई लाइक द स्टोरी. और 12 लाख रुपये उनको ऑफिस से निकलने के पहले 12 लाख का चेक दिया उनको, और तो फिल्म ही नहीं चली. बाई द टाइम कि वो 5 साल बाद लौट के आए, तब तक आमिर खान आ गए थे, शाहरुख खान आ गए थे, ये सनी देओल आ गए थे, अजय देवगन आ गए थे. और ये जो उनके डायरेक्टर्स थे, मनमोहन देसाई या प्रकाश मेहरा, ये सारे के सारे आउटडेटेड हो चुके थे. तो जो इन लोगों ने फिल्म बनाई, फिल्में चली नहीं. नए लोगों के साथ जो उन्होंने किया, मृत्यु डाटा वगैरह एकदम फ्लॉप हो गई. तो एक्चुअली जो उनका ऐसा प्रॉब्लम शुरू हुआ इसकी वजह से हुआ, ना कि पॉलिटिक्स की वजह से. But then ABCL was a thing that took him even further towards the downfall. But then KBCL brought him back. So we can say that after the movies he came into the television industry, and that supported him to come back in a bang. And I saw him doing different kind of films after he made a comeback. Like earlier he had a set pattern of movies where he was either doing very soft roles or then he was an angry young man. But then after he came back, he did varied kind of movies and he's still going strong. देखिए, जब तक वो लौट के वापस आए, तो there is something called age. Now he can't play that romantic role with Zeenat Aman or Rekha. He had lost that time. And television happened, started in India, and Peter Mukherjee wanted something big to happen, and Samir Nayak was his
big guy there. Samir Nair had this great idea of starting about KBC thing. So he went and met Mr. Bachchan, and Bachchan heard the thing, complete story, and told him give me some time. और फैमिली ने एकदम अपोज कर दिया कि यू कैन गो इनटू टेलीविजन, यू आर टू बिग फॉर टेलीविजन। बट बच्चन जी की अपनी सोच जो है वो हमेशा अलग रही है। ही टुक अप द चैलेंज। He said, I want to see the set first. I want to see the original KBC कहाँ बनता है। तो उन लोग उनको लंदन लेके गए। लंदन में Who Will Be the Billionaire या जो भी शो का नाम है उसकी शूटिंग दिखाई। And when they were returned, by the time they were returning, Bachchan ji thought that it's a great idea and they must accept this challenge. और लौट के जब आ रहे थे तो उन्होंने समीर नायर से कहा, This is going to work. This will, but we have to be perfect. We cannot go wrong anywhere. पीटर मुखर्जी आए, उनसे मिलने बात हो गई, सब फाइनल हो गया, शूटिंग शुरू हुई। तो जब भी पहले दिन गए तो देखा एक आदमी चप्पल पहन के सेट पे घूम रहा है। आई टोल्ड यू दिस हैज टू बी परफेक्ट। चप्पल पहन के कैसे आदमी कोई सेट पे आ सकता है? और उनको ये परफेक्शन का बहुत शुरू से ही रहा है। मुझे याद है मैंने बहुत पहले किसी को इंटरव्यू किया था, रोटी कपड़ा और मकान की में काम किया था उन्होंने। तो मैंने उससे पूछा आपका रोटी कपड़ा और मकान में कैसा वो था बच्चन जी से? वो बोले एक दिन मैं जा रहा था ऐसे मेकअप रूम धोते लाइन से, तो मैंने देखा बच्चन जी का एक थोड़ा कमरा आधा खुला हुआ है और जूता हाथ में लेके बैठे। मैंने नॉक किया, धीरज कुमार। तो मैंने ही वाज आल्सो प्लेइंग वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ मनोज कुमार एंड अमिताभ बच्चन। तो मैंने पूछा कि अरे आप जूता हाथ में लेके क्यों बैठे? बोले मैं सोच रहा हूँ कि मैं आर्मी मैन हूँ, सिपाही का रोल कर रहा हूँ, और ऐसा पॉइंटेड शूज पहनना मेरा ठीक रहेगा क्या? तो हमेशा से रहा है और KBC was like nothing. And then he realized, and one morning he said that what do I do mainly? What is my profession? I'm an actor. So we went to Yash Chopra Mandir in the morning and said कि यश जी मुझे फिल्मों के काम चाहिए, गिव मी अ रोल। तो यश चोपड़ा ने कहा मैं तो मेरे पास तो कोई फिल्म नहीं है, तो मेरा बेटा एक फिल्म बना रहा है मोहब्बतें, तो उससे बात कर देता हूँ। तो मोहब्बतें उनको मिला और दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग हिट फिल्म एंड आई थिंक 12-13 अवार्ड थे उसमें। तो तब से बस देयर विल बी नो स्टॉपेज। Well, we can just go on and on discussing Amitabh Bachchan ji. But what would you say to sum up about what about Amitabh Bachchan himself, what he says, or how can we sum up this? सम अप तो मैं क्या कहूँ, मैं मतलब उनके बारे में इतना कुछ कहा जा सकता है बात करें, बट मैं मेरी जावेद अख्तर साहब से एक लंबी बातचीत हुई थी उनके बारे में, तो उन्होंने कुछ कहा था। आई विल रीड दैट टू यू। Sum up would be Mr. Bachchan had given an interview in 1972 when he was not a huge actor, when he was acting and he had many films, but none of the films were working for him. At that time, he had said to be a successful actor in a commercial setup. The other book is Amitabh Bachchan in Kaleidoscope, which had come in 19, and for his 80th birthday, my third book on him will be there. Thank you. The third book would be there on the stands. Thank you so much. Thank you so much, all of you. Thank you. Thank you, Pradeep ji.